Good morning students, welcome to computer class. Today we are studying employability skill. Employability skill goes with communication skill. So when you go for employability, then communication skill is most important there. So let's study concept of communication skill. So there are 15 sessions included in this session. So number of sessions you have completed, what is communication and types of communication. Alright, these are included in this session 1 to 3. After that you studied some parts of your speech. आपने 8 पार्ट स्पीच के स्टडी किए थे सेशन नंबर 4 में एंड सम पंक्चुएशन रूल्स हाउ यू विल यूज़ दिस रूल्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड सेंटेंस फॉर्मेशन 1 and sentence formation 2. Session number 7 and 10 we will study today, and introduction oneself you have studied very well, and greetings, how to give greetings to the other, you also studied it. So today we will complete session number 7 and session number 10 with the sentence formation. All right students, so let's start with session number 7, sentence formation 1. Learning objective in this session is verb to be. हम verb to be का यूज़ करना सीखेंगे. तो to be क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टूड इट. वर्ब है ये एक टू बी. इसके 8 फॉर्म होते हैं. बी बेसिक फॉर्म होती है. सबसे मोस्ट बेसिक वर्ब जो इंग्लिश में होती है वो टू बी ही होती है. ठीक है, तो बेस होता है इसका बी. 8 फॉर्म है इसकी. एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल में इसका यूज़ एज ए बीइंग यूज़ किया जाता है. एंड पास्ट पार्टिसिपल में इसका यूज़ एज ए बीन किया जाता है. एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका यूज़ इज़ एम आर से किया जाता है. एंड पास्ट सिंपल टेंस में इसका यूज़ वाज वर के साथ किया जाता है. ठीक है, तो ये सभी बी की फॉर्म है. चाहे बीइंग, बीन, इज़ एम आर, वाज वर, ये सभी बी की फॉर्म है. ये 8 फॉर्म होती हैं बी की. ऑल राइट, so let's understood. So this is your figure number 1. Is, are, am, is all in the all sentence to be verb का यूज़ किया गया है. He is a doctor, you are happy, I am 16 year old, my uncle is a widower, her brother is married, my dad is angry, our dog is sad today, she is a doctor, you are police officer, he is a writer, my mom is 39 year old, I am a student. So these are the form of the to be verb. To be verb इस सभी सेंटेंस में to be फॉर्म का यूज़ किया गया है. ठीक है, तो to be में is एम आर का यूज़ किया गया है. सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस. ऑल राइट, एंड यू नो वेरी वेल आई यूजेस विद एम, and he, she, it and singular noun use with is, and you, we, they use with are. All right, and first person will be I, second person will be you, and third person will be he, she, it, name and relation. These are the very simple sentence, basic, most basic sentence of your English, and you know very well. I के साथ am का यूज़ होता है, he, she के साथ is का यूज़ होता है, you, we, they के साथ are का यूज़ होता है. इसके अलावा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन में I, you, he, she, it का यूज़ होता है. ठीक है, and next there are 3 types of sentences here: affirmative sentence, negative sentence and interrogative sentence. Affirmative sentence are the simple sentence, negative sentence that uses not in their sentence, and interrogative sentence are the to be verb come before the subject. So these are the question, interrogative sentence. So let's see. There are some examples with the to be. I am Dan Smith. She is a doctor. We are from Spain.
सो यहाँ पर आपकी एग्जिस्टेंस और आइडेंटिटी शो की गई है टू बी वर्ब के साथ। इन नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस ही वाज हिज सिस्टर वाइल वी आर एट होम। सो यहाँ पर लोकेशन को डिनोट किया गया है। एंड आई विल बी 32 इन दिसंबर, तो यहाँ पर एज को डिनोट किया गया है। द ड्रेस साइज इज़ 9 एंड हर लास्ट अपार्टमेंट वाज वेरी स्मॉल। तो यहाँ पर साइज़ को डिनोट किया गया है, नेक्स्ट में कलर को, नेक्स्ट में ओरिजिन को, मूड को। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ टू बी वर्ब and these are the affirmative sentence, negative sentence and interrogative sentence. So you have to do this exercise from the checkpoint. Tahira loves to watch cricket. How you will write their affirmative, negative and interrogative sentence? So you will do this exercise today as a sentence formation 1. So you have studied there are 8 form of to be verb. टू बी फॉर्म के आपके 8 फॉर्म्स होते हैं, जिसमें आप इज़ एम आर का यूज़ कर सकते हैं, वाज वर का यूज़ कर सकते हैं, बट आई विल यूज़ विद एम, इज़ विल यूज़ विद ही शी इट एंड आर विल बी यूज़ विद यू वी दे. All right, and for the first person you will use I, and the second person you will use you, and for the third person you will use he, she, it, name and relation. All right, so this is your session number 7. If you have any doubt then you can ask me, and send this checkpoint assignment for today homework in your fair notebook. All right, so you have to write 3 type of sentence: affirmative, negative and interrogative sentence of these 4 sentences. So let's start session number 10, sentence formation. चाहूंगी, देखिए, डू या डस का यूज वो डिपेंड करते हैं आपके सब्जेक्ट के ऊपर. आप बोलोगे सब्जेक्ट क्या होता है, लास्ट वीडियो में पढ़े हो, द पर्सन हु स्पीक इज ए सब्जेक्ट. मैं बात कर रही हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ. आप सुन रहे हो, आप क्या हो, सॉरी, मैं बात कर रही हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, मतलब मैं फर्स्ट पर्सन हूँ. और अगर आप सुन रहे हो तो आप सेकंड पर्सन हो. और जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं वह है हमारा कौन, थर्ड पर्सन. आ रही बात समझ में. सपोज माई नेम इज राम एंड यू आर श्याम. इट मीन्स राम इज द फर्स्ट पर्सन, श्याम इज द सेकंड पर्सन, एंड द पर्सन अबाउट whom वी आर टॉकिंग, सपोज मोहन के बारे में बात कर रहे हैं, इट मीन्स द मोहन इज द थर्ड पर्सन. नाउ यू आर गेटिंग और नॉट. नाउ मैं बोली एस या ई एस का यूज़ करते हैं या डू या डस का यूज़ करते हैं. डू और डस का यूज़ एस या ई एस के बराबर ही है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डू और डस का यूज़ कब होता है. डू और डस का यूज़ जब हम किसी सेंटेंस का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तब यूज़ होता है. कब यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब्स जितने भी हैं डू या डस, उन सभी का यूज़ नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के टाइम में होता है. ठीक. और जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो डू कब यूज़ करेंगे और डस कब यूज़ करेंगे. डू का यूज़ फर्स्ट पर्सन के साथ होता है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल के साथ, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ. लेकिन थर्ड पर्सन के साथ डस का यूज़ होता है. ठीक. सेम आपका इंट्रोगेटिव बनाने टाइम भी होता है. लेकिन अगर हम सिंपल टेंस की बात करें तो उसमें तो डू और डस का यूज़ नहीं होता. पर कंडीशन ये है कि उस टाइम में आपके वर्ब के साथ क्या लग जाता है, एस या ई एस लग जाता है. ठीक. सेम वही है, एस या ई एस किसके साथ लगेगा, सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ लगेगा, ना कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ. समझ में आया. तो ये हमारा क्या था, टॉपिक था सिंपल प्रेजेंट टेंस. नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो नेगेटिव बनाने का रूल है, बस सबसे पहले तो सब्जेक्ट, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट, डू या डस जो भी हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट. ये रेस्ट ऑफ दी पार्ट ऑफ दी सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाता है, या विल यूज़ हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट एंड देन सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड देन रेस्ट ऑफ दी सेंटेंसेस और ऑब्जेक्ट वी कैन सी. आया समझ में. यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, देखो, डू आई मेक केक. तो डू आपका क्या है, आपका डू जो है हेल्पिंग वर्ब है, मतलब हम डू को सामने रख दिए, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा. तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है. आई नो
यू ऑल आर इन 9th स्टैंडर्ड, तो आपको ये सब तो बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, बेसिक टॉपिक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है टू हैव और टू हैव गॉट। ठीक, तो टू हैव या टू हैव गॉट की बात कब होती है? जब हम पोजीशन को शो करते हैं, अधिकार को शो करते हैं, ओनरशिप को शो करते हैं। दैट आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो मेरे पास पुस्तक है भाई। ठीक, मतलब मेरा खुद की बात हो रही है ना, मेरा खुद के बुक की बात हो रही है, तब की बात है। जब हम अपना ओनरशिप बताते हैं, जब हम किसी के लिए पोजीशन शो करते हैं, तब हम हैज़ मतलब टू हैव या टू हैव गॉट का यूज़ करते हैं। दैट आई हैव अ ब्रदर, they have got a house, she has a smartphone, he has a bicycle, you have got a ring and you have a TV. These all are the example of to have or to have got. Now यहाँ पे आप देखे होंगे कहीं कहीं have लिखा है, कहीं कहीं has लिखा है। अब दिमाग में फिर आया भाई हम has का यूज़ कब करें और have का यूज़ कब करें। ठीक, सिंपल सा कंसेप्ट है। आई यू, फिर वही है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हैव का, बचा खुचा थर्ड पर्सन बिरादरी से बाहर कर दो, बेचारे को हैज़ लगा दो, तो ये हो गया आपका हैज़। ठीक है, नाउ नेगेटिव बनाने के लिए फिर वही करना है। नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगा देना है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए उसको उठा के लाके सामने कर देना रहता है कोई भी सेंटेंस में। पर यहाँ पे नेगेटिव बनाने का दिया है, उसके बाद सिंपल सा आप नॉट यूज़ करेंगे। जहाँ नॉट यूज़ है मतलब आँख मूंद के बता दो कि वो सेंटेंस नेगेटिव है। अगर किसी सेंटेंस में आखिरी में क्वेश्चन मार्क लिखा है तो आप उसमें बोल सकते हो कि वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, कुछ भी देखने का जरूरत नहीं है। ठीक, अगर क्वेश्चन के आखिरी में अगर सेंटेंस के आखिरी में क्वेश्चन मार्क मतलब वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव और अगर क्वेश्चन के बीच में नॉट आया मतलब वो नेगेटिव। ठीक है, फ्लो में कभी कभी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे। ओके, सो इस टाइप से हमारा सेशन यहाँ पे फिनिश होता है। और अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं, बट ये तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। समझ नहीं आए तो पहले पूछने से पहले आप एक बार बुक रीड करेंगे, दैट इज पेज नंबर 34 and 35 फर्स्ट, एंड देन यू कैन कॉल मी और मैसेज मी फ्रेंकली। ओके क्लास, बाय, एंजॉय।